छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पश्चिम बंगाल के 9 मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर जेल भेजने का मामला सामने आया है। कोंडागांव बस्तर संभाग का एक जिला है। पुलिस की इस कार्रवाई पर पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा भड़क गईं। जिन 9 मजदूरों को जेल भेजा गया वे सांसद महुआ मोइत्रा के संसदीय क्षेत्र कृष्णानगर के हैं। सांसद महुआ मोइत्रा ने इस कार्रवाई को छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस द्वारा अपहरण बताया। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सोमवार को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दायर की गई थी। इस याचिका के दायर होने के बाद कोंडागांव पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया कि सोमवार शाम को मजदूरों को छोड़ दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सांसद महुआ मोइत्रा ने छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस पर आरोप लगाया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 9 लोग कोंडागांव जिले के अलबेदापाड़ा में एक निजी स्कूल में निर्माण का काम कर रहे थे। तभी 12 जुलाई को पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उनके पास वैध दस्तावेज थे, उनके फोन बंद हैं। हमें उनके परिवार वालों से जानकारी मिली है कि उन्हें जगदलपुर जेल में बंद किया गया है। सुनिए महुआ मोइत्रा ने क्या कहा। Good evening. This is Mahua Moitra, Member of Parliament, Krishnanagar, West Bengal. This is to bring to your urgent attention a case of state-sponsored kidnapping of 9 people by the Chhattisgarh government, by the Chhattisgarh police. 9 people from my constituency were working as masons at a private school on a construction site in Albera-Pada in the Kondagaon district of Bastar division in Chhattisgarh. Day before yesterday on the 12th, police came to the construction site where they were staying, picked up these 9 workers, all of whom had valid documents, took them with them. Their mobile phones have been switched off. We since have got information from the family members that they have been put in jail in Jagadalpur in the neighboring district on 128 BNSS, which is the old 109 CRPC, which is that somebody is hiding their identity with an intention to commit a crime. These are 9 bona fide workers who have gone with a labor contractor with full documentation, verification, everything. Chhattisgarh police have picked them up, put them away, their mobile phones are switched off, government of West Bengal not been informed, families not been informed. We have not got a copy of the detention order of the SDM. There was no hearing, 2 hearings are supposed to be, there was no hearing, they have not had access to a lawyer, no phone call, their mobiles are switched off. I spoke to the SP of Kondagaon, Y. Akshay Kumar IPS. I was astounded to hear what that man told me. What the SP told me was, we've had a lot of cases of rape of Adivasi women by migrant workers, so we want everyone to be verified. I said, that's a great thing, so please verify them. He said, no, we don't want them to be here. I don't know why they were put in jail. I said, to verify documents, you don't need to put someone in jail. How does section 128 apply here? He said, oh, actually, I'm not sure, but we'll see. We'll release them in a day or 2 and then, we'll see. So no detention order. SP is telling me that he wants them to leave. I told him, I said, you're an IPS officer. How can you tell me that you want a citizen of India who is doing legal work in another state to leave the state? Under what authority? You are from Andhra Pradesh. You're working in Chhattisgarh. Tomorrow, if they say you leave, you leave. What kind of nonsense is going on? This is state-sponsored terrorism, state-sponsored kidnapping. Today, as of 7:30 p.m. on the 15th of July, on the 14th of July, we have no idea where these 9 workers are. In jail in Jagadalpur, they say they have been released. No mobile phone contact. We are complaining about Donald Trump doing this in America. We are doing this to our own people in our own country. I urge the media to please take this up. This is state-sponsored kidnapping. 9 people have been kidnapped by the Chhattisgarh government, held illegally in a jail with no detention order, no hearing, no access to a lawyer, and no information whatsoever. Thank you very much. महुआ मोइत्रा ने छत्तीसगढ़ सीएमओ, छत्तीसगढ़ पुलिस और छत्तीसगढ़ डीजीपी को टैग करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। 9 लोगों का राज्य प्रायोजित अपहरण, बिना किसी गिरफ्तारी आदेश के, बिना किसी सुनवाई और बिना किसी वकील के अवैध रूप से धारा 128 BNSS के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बंदियों से कोई संपर्क नहीं। महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि अभी तक किसी बंदियों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। वे कह रहे हैं कि उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन वे कहां हैं कुछ पता नहीं है।
महुआ मोइत्रा के बयान आने के बाद बस्तर के सांसद महेश कश्यप ने एक वीडियो भी जारी किया है। महुआ मोइत्रा जी को बस्तर के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। ये बस्तर 5 यूनिट क्षेत्र है, पेशा कानून लागू है। ये बंगाल के लोगों को पश्चिम बंगाल में शरण देके बंगाल को बर्बाद करने का काम जो किए हैं टीएमसी के लोग, बस्तर को बर्बाद होने हम नहीं देंगे। इसलिए उसके चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। किसको कब कार्रवाई करना है पुलिस का काम है, और उनको सजा देना माननीय न्यायालय का काम है। इसलिए माननीय सांसद जी से निवेदन है कि बस्तर ये संवेदनशील क्षेत्र है। बस्तर मुगलों से, अंग्रेजों से लड़ाई लड़के अपना संस्कृति, अपना बस्तर को सुरक्षित रखा है। इसलिए ऐसे लोगों की चिंता करने का जरूरत नहीं है। इस घटना को लेकर कोंडागांव एसपी अक्षय कुमार ने द लेंस को बताया कि अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों पर चल रही एसटीएफ की कार्रवाई के तहत इन 9 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया था। संदेह के आधार पर उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेजा गया था। इन मजदूरों के गृह जिले में कलेक्टर और एसपी से जानकारी मंगाई गई। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने सभी को सोमवार शाम को रिहा का आदेश दे दिया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 128 के तहत इन 9 मजदूरों पर कार्रवाई की गई थी। इस धारा के तहत किसी शख्स के अपने मौजूदगी की जानकारी छिपाने पर कार्रवाई होती है। इस वजह से इन्हें शनिवार यानी कि 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। फिर 14 जुलाई को इन्हें छोड़ दिया गया। द लेंस के पास उन सभी मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन दस्तावेज है जिनके आधार पर इन्हें छोड़ा गया है। जिन 9 मजदूरों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी वे सभी पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के हैं। नादिया जिले के मजदूर सोहेल शेख, सहाबुल शेख, इनामुल शेख, रहीम शेख, सयान शेख, महबूब शेख, रिपन शेख थानरपारा थाना क्षेत्र के मथुरापुर इलाके के हैं। तो वहीं एक मजदूर मनीरुल इस्लाम मंडल थानरपारा के लक्ष्मीपुर इलाके के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक मजदूर इनामुल विश्वास थानरपारा के ही साहजीपारा के निवासी हैं। कोंडागांव पुलिस को इन सभी मजदूरों के संबंध में नादिया जिले से पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिलने के बाद छोड़ा गया है। जानकारी के अनुसार इन मजदूरों को कथित तौर पर दस्तावेज पेश नहीं कर पाने की वजह से जेल भेजने की बात सामने आई है। वहीं पुलिस दावा कर रही है कि इन मजदूरों ने स्थानीय पुलिस को दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना ही कई दिनों तक जिले में रहकर काम किया। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।